I know those who have been preparing for UPSC, this was the toughest year, specifically if you look at the prelims question paper. And I looked at the question paper, and in this video I will be trying to give you some details on what you should be doing and what we can expect for the UPSC prelims 2024. So this is a kind of strategy video. At the same time, I would advise you certain things you should do so that you are not missing out from the race. So if you want to ensure that you are getting into the prelims in UPSC 2024, these are the things you must do. So let's look at the things that I am asking you to do, because we'll do a deeper analysis of the questions that has been asked, and through the questions we'll establish what are the things one should be doing for the next year going forth. Let's look at the questions. Acha, this year, if you look at this year's question paper, there is a very interesting mix of static with current affairs. That's why, and the questions were factual in nature as well. So let's look at it, the questions. See, Jhelum river, this is a NCERT, okay. Jhelum is NCERT, but Krishna river, this one Kolari lake was in the news. 17 December 2022 का news था. So the Hindu, I have mostly picked out the Hindu newspaper because that is the most referred source, okay. And Kanwar Lake was declared a Ramsar site in 2022. One thing we need to know, कि this kind of questions, Gandak river formed Kanwar Lake, that means we expected a question of Ramsar because there was so much there in the news as far as Ramsar is concerned. However, what we didn't do is we just knew कि Kanwar Lake कहाँ पे है, the state related information. But now we need to dig deeper, the things that are in news, we need to know more about them, in detail about the things about them. So that you should keep in mind. Ramsar के question expected था क्या? Yes, this was expected question, but ये जो form है, the way they have asked, this was not expected. Moving on. अच्छा, कामराजर पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट. मुंद्रा पोर्ट तो न्यूज़ में था. कामराजर पोर्ट ऑल्सो वाज इन न्यूज़ ऑन द 4th अप्रैल, द हिंदू में था. सो ये हिंदू से इम्प्रोवाइजेशन हुआ है क्वेश्चन. सो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है. देखो, ये जो जैक फ्रूट, महुआ, टेक एट्सेट्रा, महुआ टेक, दीज आर प्योरली एनसीईआरटी. जैक फ्रूट के ऊपर एनसीईआरटी में है, महुआ टेक और डेसिडियस एनसीईआरटी में है, जैक फ्रूट इज एवरग्रीन, ओके. सो दीज आर द थिंग्स कि दिस क्वेश्चंस केम फ्रॉम एनसीईआरटी. प्रॉब्लम विद स्टूडेंट इज दे रिमेंबर ओनली टेक, दे फॉरगेट महुआ, बट महुआ इज अगेन उड़ीसा में देखने को मिलता है बहुत सारा. जैक फ्रूट ऑब्वियसली उड़ीसा में मिलते हैं, वी सी देम अलॉट इन उड़ीसा. सो obviously these are the things you should pay attention. Whatever the terminology or the plants or the trees or the say tributary of a river mentioned in NCERT, that you should not miss. If you miss that, then you will be in trouble. That's what they are trying to say through these questions. Achha, if you look at the question, this question was asked because China was the most populous country, but India surpassed China. So that's why there were multiple articles about this one, how India is going to feed a 1 billion plus population with such a limited amount of geography and all that. So this was taken from Hindu articles. That means editorials are becoming important. ये मेंस वाला क्वेश्चन है, प्रीलिम्स वाला नहीं है. And so that's the reason why you should be reading the editorials and make your own notes. Make your own notes from the editorials every day. अच्छा, ये जो let's look at the question. Sea level and marshy land, the many of Run of Kutch is the answer, but then it can be contested, and I think इसका कोई reference नहीं है. Maybe some twisted brain or something. Some professor might might be knowing more about it, so they have asked it the question. So I'm not going to go into the details of the source of this particular question. If you look at this one, rutile and all that, the answer is, it is asked from the NCERT again. इसका source NCERT है. Okay, this question if you look at it, okay, battery for electric motor vehicle, Argentina. This question is essentially was there in news in 2019 and 2021. So that means थोड़ा old news है ये. हिंदू में था but पुराना news है. They have asked these questions again.
इफ यू लुक एट द मैपिंग क्वेश्चन, हाँ दिस इज ए प्योरली कॉन्गो बेसिन वाला प्योरली मैपिंग क्वेश्चन है. लॉट ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर दिस ईयर, दैट यू शुड कीप इन माइंड. दिस इज ऑल्सो ए ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन एंड अगेन NCERT है, हिंदू थोड़ा मिक्स करोगे तो मिल जाएगा ये आंसर. ओके, सह्याद्री रेंज एवरीवन नोज कि ये पार्ट नहीं है. बिलीरंगा हिल वेस्टर्न घाट का पार्ट है, सातपुरा में कैसे होगा. दीज आर थिंग. शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम टाइगर रिजर्व इज द बिगेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया. सो these are the knowledge that you should be having from basic reading of your basic books. No need to go for in depth reading of any other things. So NCERT and Hindu इसका reference source है. ईस्ट वेस्ट ये NCERT में है. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिस इज देयर. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज इन NCERT. बट इज जो ट्राइलेटरल है ये PIB में है. PIB इज गवर्नमेंट का जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट वन. ओके, BCIM also is from that one. So NCERT plus PIB. So this they are creating a very interesting mixture of static part. NCERT से कुछ ले रहे हैं, फिर कुछ current affairs से ले रहे हैं, mix कर रहे हैं, then they are creating a question, which is that is the reason why it was toughest. India, despite this is a question from Hindu directly. I have seen the source also. Okay, ये हिंदू का क्वेश्चन है. मार्सुपियल्स ये NCERT में है, अडाप्टिव रेडिएशन के ऊपर. ठीक है, सो दिस इज ए नोन क्वेश्चन इन NCERT. यू माइट फाइंड अडाप्टिव रेडिएशन. पूरा मार्सुपियल के बारे में अच्छे से दिया गया है. सो दिस इज ए क्वेश्चन ऑन अडाप्टिव रेडिएशन फ्रॉम NCERT. क्वेश्चन नंबर 13. सी इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, ग्लोबल इन्वेसिव स्पेसीज डाटाबेस. ये ऐसे न्यूज़ में डायरेक्टली नहीं था, पुराना न्यूज़ पे था. बट देन अगेन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन. दैट मीन्स IUCN इज ए वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन. इसके ऊपर व्हाट आर द थिंग्स दे आर डूइंग. ओवर दैट देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन. UPSC डज दैट. सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन हैज बीन डन बाय UPSC. लायन टेल्ड मकाक ये UPSC फेवरेट है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है. मालाबार सिवेट ये न्यूज़ में था, डिस्कस भी हुआ था. इफ़ यू हैव डन योर एनवायरमेंट रीडिंग ऑल्सो यू विल बी नोइंग दैट. कन्फ्यूजन कहाँ था? संबर डियर पे. एंड दिस इज ए स्टेट एनिमल ऑफ ओडिशा. सो नाउ डू वन थिंग, जितने सारे स्टेट एनिमल है उनके बारे में पढ़ो थोड़ा. लुक एट देम, रीड देम इन डिटेल. उनका क्या फीचर है, क्या है उनके बारे में. एटलीस्ट वी हैव ओनली से couple of number of states only. So try to find out the state animal, state bird, and because these are the important animals and birds and in India. So try to have a hold over them so that this type of question we are not missing out. Sambar deer was in the news, but then UPSC जो हिंदू का आर्टिकल है उसमें डिटेल में कवर नहीं है. ठीक है, so what they did is improvisation कर लिए यहाँ पे. So that's why it was little bit difficult for students. This was Hindu article में था ये डिटेल. अच्छा, ये जो some mushrooms have medicinal, this is language of the question. Even if you don't know, you will be able to know कि अच्छा ये सब हो सकता है. Negation of that statement, you will know कि how absurd that statement is. Common sense आप apply कर सकते हो यहाँ पे. Okay. 17 ये squirrel वाला also students have done it wrong. Now see, one thing I will tell you, NCERT usually, UPSC usually, sometimes, not usually, sometimes they ask questions based on a particular picture. I remember इबादत खाना का एक पेंटिंग है, NCERT, न्यू NCERT में है, and UPSC has asked a question on that picture. And से और भी एक न्यूज़ में था, हिंदू में एक था, एक पर्टिकुलर लिविंग रूट्स ब्रिज था मेघालय का. उस पर कोई आर्टिकल नहीं, कुछ नहीं, जस्ट एक फ़ोटो था. उसके ऊपर UPSC का क्वेश्चन भी आया था. सो सिमिलरली ये जो स्क्विरल है, यू माइट सी हियर, ओके, वेयर द स्क्विरल इज स्टोरिंग इट्स फूड एंड ऑल दैट. ओके, एंड अनदर थिंग इज यू माइट बी कन्फ्यूज कि ओमनिवरस है कि नहीं. बट अगेन स्क्विरल जो है जस्ट अबाउट इट्स ए रोडेंट, just like a rat, a different kind of rat, that's all. So do rats eat meat? Yes, they do. Okay, so obviously this kind of little bit of application of common sense also is required. अच्छा, this is again NCERT में है, and this is application of language of the question also will be able to get it right. अच्छा, which of the following makes a tool. अच्छा, ये जो orangutan वाला question है, I told you कि if a
particular animal is using its front limb as a hand, then if you look at here, fishing cat, orangutan, otter and sloth bear, out of them orangutan uses the first two limb as hands. So that is little bit of common sense, but then again आपको थोड़ा एग्जाम टाइम में मुश्किल होगा टू कनेक्ट दिस लॉजिक. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ये इंडियन एक्सप्रेस में 2021 का एक एडिटोरियल था, वहाँ से भी दे हैव मेंशन्ड दिस वन. ओके, बट देन अगेन आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू कंपेयर करोगे, विल हैव ए डिबेट ऑन दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन. दिस इज योर टिपिकल एनवायरमेंट बुक में है, so no need to get confused over here. Any environmental standard book that you refer, it must be there. This is current affairs INVITS वाला जो क्वेश्चन है, पूरा करंट अफेयर्स हिंदू में था, इंडियन एक्सप्रेस में था, हर जगह था. ये जो है this is static. Actually they are asking questions on inflation management and all, and then they have twisted it saying that connected it with the global scenario. So static, they are asking about the conceptual question, current affairs से थोड़ा मिक्स करके ट्विस्ट करके पूछ रहे हैं. बट देन अगेन इट्स एन इजी क्वेश्चन. इकोनॉमी वाज ए सेवियर दिस ईयर इफ यू आस्क मी. इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है. एनवायरमेंट थोड़ा डिफिकल्ट था, नो डाउट. करंट अफेयर्स, ओके. कार्बन मार्केट, एंड देखो ये जो स्टेटमेंट 2 है, द स्टेटमेंट 2, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट. क्यों? इज द आइडिया ऑफ लिबरल इकोनॉमी अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ लिबरल इकोनॉमी. सो नहीं हो सकता ये, ठीक है. सो करंट अफेयर्स है, एंड कॉमन सेंस भी लगा के ये यू कैन अराइव एट द क्वेश्चन, अराइव एट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 24, हाँ, दिस इज प्योरली आपका बेसिक इकोनॉमी नॉलेज है. दिस इज ऑल्सो योर बेसिक इकोनॉमी नॉलेज. इफ यू हैव डन इकोनॉमी क्लासेस एंड ऑल, यू शुड बी एबल टू आंसर देम विदाउट एनी डाउट. एंड देखो ये जो 26 वाला क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा, हाँ, दिस इज ए लेंदी पेपर, आई नो, बट देन अगेन इफ यू रीड ऑल द स्टेटमेंट्स यू विल नो कि हु इज पर्टिकुलर, यहाँ पे यू आर डिकोडिंग द लैंग्वेज ऑफ द पेपर. ये ऐसे कोई न्यूज़पेपर में कहीं पे नहीं दिया गया था. सो आंसर विल बी दिस वन, बट देन अगेन लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. थोड़ा स्मार्टनेस की ज़रूरत है. ओके, ये द होल नाइजर वाला क्वेश्चन जो है, डाउन टू अर्थ का एक आर्टिकल था, वहाँ से पूछा गया है. नाउ यू कैन नॉट रीड ऑल द डाउन टू अर्थ आर्टिकल्स, ठीक है, बट देन अगेन कोई सिलेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं. दिस इज बेसिक इकोनॉमी. इफ यू नो व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट, यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, डेमोग्राफिक, ये 15th फिनेंस कमीशन, ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है. ओल्ड करंट अफेयर्स 2021 का करंट अफेयर्स है, बट आई थिंक ये रह गया था, पूछ लिए. सो करंट अफेयर्स 2 years इज बिकमिंग इम्पोर्टेंट. दिस आई नेवर नो, ओनली द भगवान को पता है, मुझे पता है नहीं है कहाँ से पूछे हैं ये, छोड़ दो उसको. हाँ, दिस इज योर टिपिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी, ठीक है. पॉलिटी का नॉलेज है ये. अगेन पॉलिटी, अच्छा, यहाँ पे अगर देखोगे पॉलिटी और करंट अफेयर्स मिक्स हुआ है. प्रिजन एक्ट, मॉडल प्रिजन एक्ट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग, एंड यहाँ पे फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन, ठीक है. हाँ, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स. एंड यहाँ पे इफ़ यू नो कि प्रिजन इज स्टेट लिस्ट, आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. 2 things, ये जो आइडिया है स्टेट लिस्ट क्या क्या है, एंड लॉ, रेगुलेशन और रूल्स. सी, रेगुलेशन एंड रूल्स जो होता है वो निटी ग्रिटी डिटेल के लिए होता है, लॉ थोड़ा ब्रॉड होता है, ठीक है. सो इफ़ यू नो दैट मच ओनली, यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर. पॉलिटी का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा चाहिए, करंट अफेयर्स अगर पता भी नहीं है, यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर. दिस इज प्योरली पॉलिटी. ओके, पॉलिटी, एंड ये बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे डिबेट चल रहा है फर्स्ट एंड 42nd. आई थिंक फर्स्ट अमेंडमेंट, बिकॉज 9 शेड्यूल लाया गया था. ओके, दे हैव ब्रॉट 9 शेड्यूल व्हिच एक्टेड एज ए शील्ड. दैट्स व्हाई फर्स्ट अमेंडमेंट शुड बी द आंसर. अगेन पॉलिटी अमेंडमेंट वाला जो क्वेश्चन पार्ट है पढ़ना पड़ेगा, बेसिक पॉलिटी नॉलेज, ठीक है. हाँ, दिस इज इजी क्वेश्चन, पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स, क्योंकि एनसीवीसी न्यूज़ पे था. इट बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, रेस्ट ऑफ देम आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. दिस इज अगेन पॉलिटी.
हाँ सी यहाँ पे थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस करना पड़ेगा, ठीक है. वी कैनॉट हैव फाइंड यू नो एवरीथिंग इन द लक्ष्मीकांत, ठीक है. सो वी नीड टू एक्सटेंड आवर अंडरस्टैंडिंग टू ए ग्रेटर डिग्री, दैट मस्ट बी देयर. 37. हाँ, दिस इज इजी क्वेश्चन, पॉलिटी वाला क्वेश्चन है. इफ यू हैव रेड पॉलिटी यू शुड बी एबल टू आंसर इट. Polity also was a savior this year. This is question that was from a down to earth article again, as I already told you. Down to earth article से 2-3 क्वेश्चन आए हैं, ओके. बट देन अगेन पूरा डाउन टू अर्थ को मास्टरी करने के लिए हम बैठ नहीं सकते, सो दैट्स एन इशू. हाँ, दिस इज पॉलिटी क्वेश्चन, ओके. पॉलिटी क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस भी वी कैन अप्लाई कि व्हाई चीफ मिनिस्टर विल सेंड ए रिपोर्ट टू यूनियन होम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट इज डिक्लेयरिंग, गवर्नर इज एडमिनिस्टरिंग इट, सो व्हाई चीफ मिनिस्टर विल बी एंगेज्ड एंड व्हाई द होम मिनिस्टर. सो दैट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और पॉलिटी का जो नॉलेज है उसका एप्लीकेशन थोड़ा यहाँ पे करना पड़ेगा. पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स, दिस वन, यस, पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स एडमिक्सचर है. हाँ, दिस इज धन्य कटक से. इवन इफ यू डोंट नो दिस वन, एनसीईआरटी में एक मैप है, न्यू एनसीईआरटी में, जहाँ पे धन्य कटक मेंशन है, बट स्टिल यू वोंट बी एबल टू फाइंड दिस आंसर. यहाँ पे वी नो दैट द वर्ड कटक, इफ यू हैव रेड योर एंशिएंट इंडिया एंड स्कंदभार, दीज आर सातवाहन के टाइम पे ये दोनों वर्ड्स आएंगे. इफ़ यू हैव रेड योर ओल्ड एनसीईआरटी, आर.एस. शर्मा वाला शायद, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी, यू नो दैट कि कटक स्कंदभार आर मिलिटरी टाउन्स, मिलिटरी कैंटोनमेंट टाउन्स, ठीक है. एंड दे विल कम टू योर नॉलेज ड्यूरिंग सातवाहन पीरियड, एंड सातवाहन आर नथिंग बट द आंध्रा. दैट कनेक्शन यू कैन मेक by decoding the Kataka word from the particular धन्य कटक. और न्यू एनसीईआरटी में इसका एक मैप में दिया गया है, ओके. सो एनसीईआरटी में I'll talk about it in a while. This is purely NCERT question, NCERT, but then again ये जो स्तूपा है that will confuse you. So you have to do a revision, proper revision, and don't miss the important statements from NCERT. हाँ, दिस इज ओल्ड एनसीईआरटी. ओल्ड एनसीईआरटी आपका जो भी स्टैंडर्ड रेफरेंस यू आर यूजिंग फॉर एंशिएंट इंडिया, यू विल फाइंड दिस थिंग्स ओवर देयर. हाँ, भट्टिकिरुतल हर जगह मेंशन नहीं है, बट संगम पोएम इज ऑल अबाउट लव एंड वार. एंड इफ़ यू ट्राई टू फाइंड दैट आउट कि यहाँ पे लव वाला थीम कहाँ पे है या वार वाला थीम कहाँ पे है, विल फाइंड योर आंसर. दैट लिंकेज यू हैव टू मेक, ठीक है. That means it's not about only knowing things, how do you connect things, that also has to be developed. So just about knowing the fact is not going to help you much. And Upinder Singh जो है, बहुत सारे many people have quoted Upinder Singh. I see, if you look at Upinder Singh, it is a history optional book, ठीक है, history optional book. That means even optional students also don't read everything from this particular book. It is very bulky book also. So expecting a particular person to read Upinder Singh is absurd. So that connection has to be made. Selective reading कर सकते हो उपिंदर सिंह का, but not necessary. This is chronology यूपीएससी का फेवरेट है. एनसीईआरटी या कोई भी ये में देखोगे तो ये मिलेगा हर एवरी टाइम, एवरी ईयर. एंशिएंट इंडिया या मिडिएवल इंडिया से कोई क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, टाइम सेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है. दिस इज अगेन आर.एस. शर्मा है इसका सोर्स, ओके. फैक्चुअल क्वेश्चन. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मिसिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नाउ दे आर ब्रिंगिंग इट बैक. दिस इज प्रिटी इजी क्वेश्चन. अगर सोल के बारे में मेंशन है एंड इफ ए नॉन लिविंग थिंग हैज ए सोल, दैट मीन्स इट इज ऑब्वियसली जैनिज्म. प्रिटी इजी क्वेश्चन, ओके. एनी ओल्ड एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे, न्यू एनसीईआरटी पढ़ोगे, कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में मिल जाएगा ये. दिस इज ओल्ड एनसीईआरटी, आर.एस. शर्मा में मिल जाएगा आपको.
दिस इज सरेंडर टू ड्यू स्पेक्ट्रम, बट दिस पार्ट यूजुअली क्या होता है ना, स्टूडेंट्स यूजुअली डोंट रिमेंबर देम. ओके, fact, if you look at the whole spectrum, this part is little bit boring, little bit uninteresting to remember. Okay. Now if you look at question number 50, this is a pretty easy question. Spectrum में है, ठीक है. Modern India very less questions, which is a good thing, not a bad thing. जननी सुरक्षा योजना, ये पुराना स्कीम है. सी द गवर्नमेंट हैज़ बिन रनिंग फ्रॉम 2014, सो कोई नया स्कीम तो ऐसे लाएंगे नहीं. मोस्टली पुराने कोई एक स्कीम के बारे में पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है. सो दिस इज ए पब्लिक, PIB में था, न्यूज़ में भी था. बट दिस ईयर आई आस्क्ड स्टूडेंट्स नॉट टू रीड स्कीम्स, बिकॉज पता था कि 2014 से गवर्नमेंट चल रहा है. सो स्कीम्स के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा. एंड इनपुट टू आउटपुट रेशियो विल बी 150-200 पेज का पढ़ोगे मटेरियल, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, या ऐसे एक क्वेश्चन आएगा जिससे जो आपको ठीक से याद नहीं है, आप कर नहीं पाओगे, फ़ायदा क्या है, ठीक है. मे बी यू कैन गो फॉर लिटिल बिट एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस एंड एलिमिनेट द ऑप्शन. ओके, ये भी उसी टाइप के क्वेश्चन है. नाउ हियर कैच वाज प्रोफाइलेटिक कैल्शियम. यहाँ पे इफ़ यू नो कि आयरन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल बी एबल टू find your answer. This is NCERT, but I think common sense अगर यूज़ करोगे, why they can't be recycled, ऐसा क्यों नहीं होगा. ये strong statement है, wrong statement है. So usual है, we can eliminate that. 54, this is a Hindu question. अच्छा, ये हिंदू में था, हिंदू में एडिटोरियल में था. ओके, साइंस एंड टेक, एडिटोरियल नहीं, साइंस एंड टेक सेक्शन में था. बायोफिल्टर्स, अगेन ये भी हिंदू में था. बायोफिल्टर्स, साइंस एंड टेक भी हिंदू से ही पूछा गया है, थोड़ा पुराना है कुछ चीज़ें. यहाँ पे NCERT प्लस हिंदू, अगेन स्टैटिक और करंट अफेयर्स मिक्स हुआ है. नेबुला NCERT वाला क्वेश्चन है, पल्सर हिंदू वाला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपिंग वन. सो मिक्सचर ऑफ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स. सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम इजी क्वेश्चन है, हिंदू में था, बहुत सारे न्यूज़पेपर में था ये. 58, हाँ, ये मिसाइल वाला क्वेश्चन वॉज मिसिंग फॉर लास्ट 5-6 ईयर्स, नाउ दे हैव आस्क्ड इट. सो हिंदू में था, ये कवर भी हुआ था. Gold mining activity, this is purely improvisation. Third statement most of the students will not be knowing. If they can they can know this and this. If you are a decent person who have read decent enough, you'll be able to know 1 and 2. 3 is the catchy one here, and most of the students would have done wrong. So ये थोड़ा improvisation वाला question है, because they have gone to the particular site and try to find the answer, फ्रेम दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ये कोई न्यूज़पेपर में कवर भी नहीं हुआ था, बहुत था बट पुराना बहुत, ठीक है. ग्रीन हाइड्रोजन, सी इफ़ यू लुक एट द क्वेश्चन, इवन इफ यू डोंट नो, हिंदू में तो था ही. कॉमन सेंस भी अगर यूज़ करोगे हर जगह इट कैन बी यूज्ड, ठीक है. इंटरनल कंबर्सन, ये तो था, रिलायंस लाया है हाइड्रोजन कंबर्सन वाला गाड़ी. आवर पर्टिकुलर मिनिस्टर ऑल्सो ट्रैवलिंग विद दैट काइंड ऑफ व्हीकल. सो इस पे था, कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हो. हाँ, दिस इज चेक रिपब्लिक. ओके, कंट्री सराउंडिंग यूक्रेन. ये मैपिंग क्लास, इजी क्वेश्चन, कवर्ड इन आवर क्लासेस ऑल्सो. मेनी क्वेश्चंस वर कवर्ड इन क्लासेस, सम ऑफ देम वर नॉट. द टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, यहाँ पे देखो सिंपल क्वेश्चन है. आई हैव गेव दिस क्वेश्चन ऑल्सो, नॉट एग्जैक्टली इन दिस फॉर्मेट, बट देन अगेन, वाटर वेपर इज द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस. ओके, दैट यू शुड नो. NCERT वाला क्वेश्चन है ये. द सॉइल इन ट्रॉपिकल, ये NCERT, प्योरली NCERT क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन ऑल्सो. हाँ, दिस वन इज एप्लीकेशन ऑफ बेसिक नॉलेज है, अप्लाइड बेसिक नॉलेज है. थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कैन बी कॉन्टेस्टेड ऑल्सो. 65, हाँ, दिस इज प्योरली NCERT क्वेश्चन. इफ यू हैव डन द P वेव, S वेव, फिजिकल ज्योग्राफी वाला NCERT, यू शुड बी एबल टू नो. ओके,
See, this question, less knowledge and more language. If you look at the language of the question, then only you have to eliminate the answer. उल्बेचिया ये हिंदू में था, डेंगू के टाइम ये हमेशा न्यूज़ पे था, ठीक है, हिंदू में था और बहुत सारे न्यूज़पेपर में था, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू में था. हाँ, दिस वन इज लिटिल बिट ट्रिकी वन, ठीक है. बेसिक था ये, और ये करंट अफेयर्स को इम्प्रोवाइज किया गया है. ये टिपिकल आपके हिंदू या किसी में नहीं था, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ओके, ये नहीं था, ये था, लेकिन अदर थिंग्स वर देयर, ओके. सो लिटिल बिट आई विल से दिस इज ए टफर क्वेश्चन, कैन कंफ्यूज ए वेल रेड स्टूडेंट. यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन ये लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन ही यू कैन यूज, ओके. हाँ, ये माइक्रोसेटेलाइट डीएनए जो है ये हिंदू में था, ठीक है. साइंस एंड टेक थोड़ा दे हैव आस्क्ड सम नीश एलिमेंट्स, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा नीश एलिमेंट्स है. दिस वन ये थोड़ा पुराना स्टेटमेंट है, ठीक है, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्ट 2006. सो अगेन पीआईबी और हिंदू में था ये. हाँ, सीबीडीसी ये हिंदू में था और बहुत सारे न्यूज़ में भी था. सो इट्स ए इजी क्वेश्चन. इकोनॉमी वाज ए सेवियर, इफ यू हैव डन योर इकोनॉमी प्रॉपरली शुड बी एबल टू आंसर. हाँ, दिस इज लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजिंग वन. बेटा ये लाइव मिंट में आई फाउंड द रेफरेंस, लाइव मिंट 2020 का एक पर्टिकुलर आर्टिकल में था, बट देन अगेन रीडिंग लाइव मिंट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए जनरल स्टूडेंट, ओके. इतने सारे न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकते, वी कैनॉट कीप ए ट्रैक ऑफ इट. This is basic economy. If you have read your economy, you will know कि ऐसे self help groups were started by NABARD and all that. Okay. हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, you must be knowing कि health care जो है it is a state subject, state list. बहुत सारे application based question पूछा गया है यहाँ पे, state list, union list के ऊपर, mostly state list के ऊपर, okay. वेरी ब्रॉड सेट न्यूज़ पे में ऐसे नहीं होगा, ठीक है. वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट ये हिंदू में था. पॉलिटी, ये पॉलिटी आपकी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा. यस, दिस स्टेटमेंट ऑल्सो आई गेव इन आवर टेस्ट सीरीज. एग्जाम्स क्यों करेगा अकॉर्डिंग, ठीक है. सो दिस वन इज ओल्ड करंट अफेयर्स. आई डोंट नो व्हाई दे हैव आस्क्ड इट. बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, एंड दिस पर्टिकुलर लॉ इज व्हाई दे हैव देयर इज नो रीजन व्हाई दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, पर्टिकुलरली द स्टेटमेंट 3. सो कैन बी कंफ्यूजिंग एंड दैट्स व्हाई इट वाज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन. सिविल स्ट्राइक, फूड शॉर्टेज एट्सेट्रा ये हिंदू में हमेशा न्यूज़ पे रहता है, मस्ट बी नोइंग दिस. आई एम डिस्कसिंग द सोर्स नॉट द आंसर्स. ओके, बायोडाइवर्सिटी ये हिंदू में था. दिस बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर पूरा न्यूज़ था हिंदू में, ठीक है. ओके, हाँ, ये वेरी इंटरेस्टिंग. दे हैव मिक्स्ड पॉलिटी विथ द हिंदू, दैट मीन्स स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स मिक्स हुआ है. ये जो स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट, आपके हिंदू में एडिटोरियल में है, एंड मोस्टली नन ऑफ द इंस्टीट्यूट इन इंडिया वुड हैव कवर्ड इट, बिकॉज एडिटोरियल में है, इतने डिटेल में नहीं पूछेंगे. Everybody might have thought the same, so that's why. So it was a president of India का क्वेश्चन आएगा, ये एक्सपेक्टेड था. ये इन डिटेल में आएगा, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, ओके. देखो अलेक्जेंडरिया ये एनसीईआरटी में है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वोंट रिमेंबर इट. यहाँ पे आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हो कि दिस नेम्स यू माइट नॉट हैव हर्ड अबाउट इंग्लिश प्रेस, चर्च, रेलवे, इसमें सुना ही नहीं. यू माइट नॉट हैव हर्ड अबाउट दिस नेम्स. सो mostly you can go for archaeological excavation. हिंदू में some names are there and NCERT में कुछ names है. Alexandria I think is in the NCERT, ठीक है. थोड़ा NCERT से लिया गया है, थोड़ा हिंदू से लिया गया है, फिर improvisation करके पूछ रहे हैं. हाँ, ये purely NCERT questions we have covered in test also, not test classes I think, test में भी था शायद. हाँ, दिस इज PIB प्लस इम्प्रोवाइजेशन, बट इन माई ओपिनियन ये जो नेशनल हैंडलूम डे एट्सेट्रा, दिस इज काइंड ऑफ ए मोर ऑफ ए SSC क्वेश्चन दैन UPSC वाला क्वेश्चन है, ठीक है.
PIB प्लस इम्प्रोवाइजेशन किया गया है, ये हिंदी में था. दिस वॉज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. फ्लैग कोड ऑफ इंडिया दैट वाज कंटिन्यूसली वाज इन द न्यूज़, बट ये जो इन डिटेल सबको पता नहीं था, अगर ये सही है तो ये कैसे सही नहीं होगा. सो जो भी पढ़ रहे हो अभी इन डिटेल थोड़ा पढ़ो. ओके, पे अटेंशन टू इट. एंड रेडीमेड मटेरियल जो मार्केट में अवेलेबल है दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू 1 ईयर एक्चुअली. इजी क्वेश्चन, क्वालिटी वाला क्वेश्चन है, नॉट टू डिस्कस दैट. दिस इज हिंदू तो था, गोल्ड काउंसिल ये सब न्यूज़ पे था, बट देन अगेन यहाँ पे दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी कॉन्टेस्टेड ऑल्सो. देखो, स्विट्जरलैंड हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, एंड इफ यू से गोल्ड रिजर्व, इज इट टॉकिंग अबाउट माइनिंग और इज इट टॉकिंग अबाउट फॉरेक्स रिजर्व. ठीक है, जैसे IMF के पास बहुत सारे गोल्ड रिजर्व है. सो व्हाट काइंड ऑफ thinking that or what kind of thinking we should put into this question. This question can be contested. 87, if you look at this question, हिंदू में था ये, बट पुराना क्वेश्चन है. हाँ, इंडिया अकाउंट्स पर ये हिंदू इकोनॉमिक सर्वे दोनों मिला के आया है. इकोनॉमिक सर्वे का ये स्टेटमेंट था एक्चुअली, 3.2 वाला नहीं, इंडिया हाउ मच एक्सपोर्ट इज डन. टिपिकल इकोनॉमिक सर्वे जब आता है तब ये स्टेटमेंट सब आता है, ये फिगर सब आता है. देखो, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ये सब कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, बिकॉज इफ़ यू डोंट नो नोबडी एल्स ऑल्सो विल बी नोइंग. थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन देख के आपको समझ जाना चाहिए. ठीक है, अच्छा, इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, इफ यू रीड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू अराइव एट द आंसर. आई हैव डिस्कस्ड दिस वन ऑलरेडी. होम गार्ड्स, देखो यहाँ पे एक चीज़ यू शुड बी नोइंग. देखो, 2 थिंग्स इफ यू नो दैट इन स्टेट लिस्ट पुलिस इज देयर एंड लॉ रूल्स रेगुलेशंस. इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, इफ यू नो स्टेट लिस्ट में पुलिस है एंड इफ यू नो लॉ रूल रेगुलेशन क्या है, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, वाई द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है कि रूल बनाएंगे होम गार्ड्स के लिए फर्स्ट, एंड पुलिस स्टेट लिस्ट में है. होमगार्ड तो इसका ऑक्सिलरी पार्ट है. सो ऑब्वियसली दिस एप्लीकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी नॉलेज ऑल्सो कैन बी यूज्ड हियर. ओके, हाँ, ये इश्यूज था कहीं पे somebody wearing police or military uniform और somebody फायरिंग सेलिब्रिटी गन फायर, जो हरियाणा यूपी में रहता है यूजुअली, कोई सेलिब्रेशन में कोई गन फायर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमेशा न्यूज़ में रहता है. एंड ओबियसली उनके ऊपर एडिटोरियल आते रहते हैं. सो दिस इज अगेन हिंदू एडिटोरियल्स. ओके, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. दिस इज हिंदू एंड करंट अफेयर्स. आई थिंक दिस वाज कवर्ड इन आवर क्लास ऑल्सो. इजराइल, हाँ, ये जो है आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, इवन इफ यू डोंट नो, दिस वाज इन द न्यूज़. I2U2, इजराइल, इंडिया, USA एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ओके, I2U2 बहुत बार न्यूज़ पे था 2022 में. दैट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज यू कैन डू ओवर हियर. एंड अरब लीग हिंदू में था ही डिस्कशन. स्टिल इफ यू डोंट नो, was signed by Israel and Arab League. Arab League में बहुत सारे अरब कंट्रीज हैं and obviously the whole Arab League cannot come to terms with it. So statement wrong होगा. Okay. See, even if they have asked sports related question, this kind of question is undoable and we cannot, देखो, we are already covering so much in current affairs. We cannot go for and read about sports and all that. ठीक है, that will add more burden to us. So no need. नहीं भी आ रहा है, छोड़ दो. We no need to know everything. ये 44th चेस ओलंपियाड चेन्नई होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. सो ये बहुत बार न्यूज़ पे था, फ्रंट पेज पे था. सो दैट्स वाई वी शुड बी नोइंग दिस. बट देन अगेन ये जो इंटरचेंज किया गया है, ओके, दिस इज नॉट वेरी UPSC लाइक, बट देन अगेन ओके, दैट्स वाई nobody would have read it in depth. That we should be knowing. फिर भी स्पोर्ट्स से आ रहा है 2 क्वेश्चन. दैट डजंट मीन कि आप स्पोर्ट्स अभी पूरा पढ़ना शुरू कर दोगे. जो कहीं थोड़ा कैच होगा वो पढ़ो, बाकी छोड़ दो. ये हिंदू में था, बहुत सारे न्यूज़ पे था, कवर भी हुआ था. हाँ, ये अगेन हिंदू ओवर द ईयर्स ये था. इजी क्वेश्चन था ये कॉमन सेंस लगा सकते हो. अगर ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एवरीवेयर, व्हाई नॉट इन ऑल ऑफ दिस 3.
एंड G20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था एंड दिस वाज इन द न्यूज़ ऑल्सो, PIB, हिंदू, हर जगह, ठीक है. सो इफ यू लुक हियर व्हाट यू शुड बी डूइंग, आई विल आस्क यू टू थिंग्स यू शुड बी डूइंग. इफ यू लुक एट द NCERT में जितने सारे हैं फुल होल्ड, दैट मीन्स NCERT जितने सारे बुक्स हैं आपके पास, यू शुड बी डूइंग एटलीस्ट 10 रिविजन्स. इफ यू आर नॉट डूइंग 10 रिविजन्स, यू आर गोइंग टू regret in the exam. That's what we have seen. NCERT से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, and look at the NCERT maps, look at the NCERT pictures, you know, and think over it, ponder over it, then only you will be able to answer those questions. Second, I will not suggest Indian Express, क्योंकि हिंदू से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इंडियन एक्सप्रेस से इतना ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आए हैं. Editorial, see now newspaper reading became essential. If you want to know which newspaper to follow, go for Hindu blindly. No need to go for Indian Express. I know Indian Express recently became popular, but वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हैं, ठीक है. Hindu is still gold standard for UPSC. Follow that. I know it is a left-leaning paper and current government is little rightish, so that tussle will be there, but you have to balance it out, okay. And editorial जो है वो important है. From Hindu editorial अच्छे से पढ़ो. Now one thing you should be knowing, कोई जो शॉर्टकट मटेरियल है, ये मटेरियल वो मटेरियल, प्रीलिम से ये मटेरियल पढ़ के चले जाओ हो जाएगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. दैट इज़ द ट्रूथ. एंड इफ़ यू, आपको लग रहा है कि आप 3 महीने में निकाल दोगे प्रीलिम्स, दोज हु थॉट इट दैट वे, दे वेर इन फॉर ए रूट्स ऑफ दिस ईयर, ओके. मतलब 1 साल का आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा. सो मेक न्यूज़पेपर रीडिंग ए हैबिट. स्पेसिफिकली एडिटोरियल थोड़ा पढ़ो, क्योंकि question they are asking questions from the editorials itself, okay. So in depth reading of the editorials are required. You should be knowing कि कौन सा editorial पढ़ना चाहिए, कौन सा छोड़ देना चाहिए. That sense also you have to build. Anyway, we are taking current affairs classes. If you want to attend, let me know. NCERT complete hold over them, old and new. जो भी old है, history वाला पुराना NCERT है, and new वाला जो है पूरा अच्छे से hold रखो. उसके ऊपर मैप देखो, जो डिटेल्स दिया गया है देखो. Take your time, but have a strong hold over NCERT कि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, you should be able to know them. हिंदू एडिटोरियल्स हो गया. एंड देन एप्लीकेशन ऑफ just reading polity या economy is not enough. You should know how to apply that knowledge in the real time of the exam. For that you need to not only read but also attempt good number of questions. Then only you will be able to establish कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ओके, एंड ऑल दैट, ओके. सो डू दिस कपल ऑफ थिंग्स. एंड ये जो न्यूज़पेपर वाला, द न्यूज़पेपर थिंग दैट आई एम आस्किंग टू रीड डेली, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू गोइंग फोर्थ. इफ़ यू गो फॉर एनी शॉर्टकट मटेरियल्स, डिफिकल्ट होगा थोड़ा. एंड क्वेश्चंस दे आर कैटेगोरिकली लुक्स लाइक दे आर कैटेगोरिकली टारगेटिंग द शॉर्टकट्स, एलिमिनेशन मेथड, जितने सारे methods were there, they were categorically targeting that, and they are also checking not only the bookish knowledge of an applicant but also the extended application of that knowledge, okay. And extended application of that knowledge under stress. 2 घंटे, this was a very lengthy paper, so under stress are you able to keep your calm and apply your knowledge or apply your logic. That is what is required. If you are panicking in the exam after looking say 5-10 questions, that means you are not prepared enough and you are not able to manage the stress. That you have to build in over time, okay. So these are my advice to all of you. And if you have failed this year, no need to beat yourself up. Try better, and you have the time. Now work on the things that is required to be required to be worked on. For example, NCERT हो गया, पॉलिटी बुक हो गया, इकोनॉमी हो गया. should be you should have a strong hold over. Modern India, I told you this questions this year पूछेंगे ही नहीं, 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे. that came true. Ancient India we gave focus. Ancient India से क्वेश्चन भी आया था बहुत सारे. Polity we gave a lot of focus. Economy we gave a lot of focus. So क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से, because these are expected things. Now another thing that I observed is they are focusing more on geography of things, okay. So जितने सारे the geographical mapping aspect have a good hold over them. Usually students don't like them, so except geography optional वाले. So now the general GS students जितने सारे हैं जिनका geography optional नहीं है, they should also
focus on these aspects as well, because that is going to be there, more of that will be there in the exam. Okay, so wishing you best of luck, and हमारा जो VPC prelims test series है और बहुत जल्दी शुरू होगा, so we'll declare all the details. See, my objective is to frame questions that is going to help you in the real exam, and that's how we'll be framing the questions, and we'll pick up the questions the way they have picked up, or you know in detail में जैसे पूछ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, because UPSC will never ask a question if there is no catch, so we have to catch the we have to find the catch in any editorial or any news that is there, and then go for the framing of the question. So that's what we will be going forth, and if you are interested, let us know. Okay, thank you.